Good evening, everyone, and welcome to this day 15 of the Power BI batch. Now, this is going to be the start of the third week and the last week for this course. So, we are going to the next level, and now we are going to talk about DAX functions. And I have already shared the material with you, and it is going to be advanced level. So now I'm just going to walk you through this book. It is a 300 pages book, but a very detailed one. Okay. So obviously, covering this would take 6 months. Okay. But what we will do is I'll just help you of how to use this as a referencer and how to use this for learning so that even when the course is over you can continue your learnings, and this is the advanced level, so this was not actually intended to be covered, but yes, I will teach you some of the date functions, time intelligence functions someone was asking. So we are going to start with this and we will cover this extensively because these are most important functions in DAX. Okay, so I am definitely going to cover all these things, and then it depends on how deep we want to go. There are a lot of functions, statistical, format functions, and all this. So you can see the list is very long, correct? And I will also give you one other file which has 80, around 79 or 80 DAX functions, okay, which is also categorically put. But let me walk you through this book. So this is a Bible, I must say, and you will see a lot of things in this book. Okay, so as we use the functions in Excel, the same functions, we almost similar functions we can say, not same, but similar functions are there in Power BI also, correct? So when we do any calculations in Power BI, it is with the help of DAX function. DAX is called as Data Analysis Expression Language. Okay, DAX. So DAX is a formula basically when you want to calculate anything specific. And a scalar operator can be a plus, minus, multiply, divide, greater than equal to, and double ampersand for using an AND condition, or a pipe for a OR condition, something like this. Okay. So we will talk about all this and we are going to see this in detail. Okay. Now there are some things that we need to understand before we actually deep dive into DAX, and that is why I've opened this PDF in front of you. So let's read some of the things, and it is going to be a fundamental building class, or you can say concept building class. Once we have built the concept, then we will be able to use DAX properly. Okay. अदरवाइज क्या होता है कि ऊपर ऊपर से आपको आ जाएगा पावर बीआई, आप बहुत गहराई में नहीं जा पाएंगे उससे, और उसको यूज नहीं ले पाएंगे. तो आई वांट यू टू learn it in detail, but we have a limitation of time and this thing, so we will not go very detailed, but I'll give you an idea of all these things, correct? So अब देखो यहाँ पर है ना, कुछ रेस्ट्रिक्शंस है, कुछ चीजों के बारे में बात करनी है हमारे को, जैसे कि यहाँ पर इज इक्वल टू 3 लिखा आपने, रिजल्ट आएगा 3, है ना, डैक्स फंक्शन की बात करें. इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा में सेल्स लिखेंगे तो सेल्स आ जाएगा लिखा हुआ, ठीक है. दैट मीन्स यू कैन create any new data set also in the DAX. So let me open my file, and we are now going to experiment, like we are going to learn the DAX function not related to the data set, like obviously related to the data set, but हम individual functions देखेंगे. फिर हम कल परसों में कल या परसों जब भी नेक्स्ट क्लास होगी, है ना, तो इवेंचुअली वी विल बिल्ड अप अ डैशबोर्ड बेस्ड ऑन सम थिंग्स. ओके. सो देखो, मैंने कल ये डेट और टाइम का फंक्शन लगाया था, ठीक है, मैंने आपको बताया था हाउ यू कैन राइट अ डेट एंड टाइम फंक्शन इन डैक्स, एंड नाउ इट इज शोइंग मी टुडेज डेट along with the current टाइम. ठीक है. रंजीत वॉज देयर yesterday. तो कल 2 तारीख आ रही थी, आज 3 तारीख आ रहा है, मंडे एंड 3rd Feb. ठीक है. इफ यू क्लिक ऑन दिस, ओके, एंड यू चेक, तो प्रोडक्ट वाले टेबल में
there is a current date का function we had created. If I double click on this, those who were not present yesterday, most of you were not there. कमल आप थे क्या? आप भी नहीं थे शायद कल ना? नहीं सर, मैं कल नहीं था, कल मैं बाहर था। इनफैक्ट आपका वो जो टैक्स वाला समथिंग आपने स्टार्ट किया था, वो भी करेक्ट मैं करेक्ट। हाँ हाँ। रास्ते से ज्वाइन किया, लेकिन वो पूरा नेटवर्क नहीं आ रहा था, तो फिर मैंने डिस्कनेक्ट एग्जैक्टली कर दिया exactly. था। हाँ नहीं, उसका मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग भी डाला है। आई थिंक अच्छा शायद अच्छा। ग्रुप में शेयर किया नहीं किया, बट आई हैव शेयर्ड इट। नहीं, आपने शेयर किया है शायद। किया है, हाँ मैं किया था मैंने उसको। हाँ तो बाद करेक्ट। में आप कभी भी देख लेना। इट इज श्योर ऑल्सो श्योर। वी डिस्कस्ड अबाउट बजट एंड द इन्वेस्टमेंट पार्ट ऑल्सो। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। वो भी आप सब लोग वेन एवर यू गेट टाइम वॉच इट। 40-45 मिनट्स का रिकॉर्डिंग वो। So, when we create a current date ka function, so what we have done is today. Today is a common function in Excel also. Today will give you the date. But मैं आपको इसको फिर से करके बताता हूँ. Those who were not there yesterday, so we will modify this function. और मैं यहाँ पे लिखता हूँ today. ठीक है, today लिखा तो, और ब्रैकेट बंद करके ऐसे कर दिया। ठीक है, सो यू विल गेट दिस डेट एंड द टाइम ऑल्सो, डेट एंड टाइम। ठीक है, अब दो ऑप्शन है हमारे पास, या तो ऊपर फॉर्मेट आ रहा है, उस पर क्लिक करके आपको जो चाहिए, सपोज मुझे इस फॉर्मेट में डेट चाहिए तो आई विल गेट ओनली द डेट। ठीक है, या मुझे मंथ, ईयर एंड डे इस तरीके से चाहिए, है ना, तो आई विल गेट लाइक दिस। पूरा 3rd Feb लिख के आएगा, February 2025। बट यू वांट इन अ स्पेसिफिक फॉर्मेट, है ना, तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन राइट द फॉर्मूला ऑफ फॉर्मेट ओवर हियर। ठीक है, और डेट देखो इसका क्या है, कन्वर्ट्स अ वैल्यू टू अ टेक्स्ट इन अ स्पेसिफाइड नंबर फॉर्मेट। तो यहाँ पे हमने वैल्यू ले लिया, वैल्यू टुडे फंक्शन से डेट ले लेगा। नाउ व्हाट इज द फॉर्मेट? सो फॉर्मेट आई वांट टू गिव एट DDMMYY, ऐसा ऐसे फॉर्मेट में मुझे डेट चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे लोकल नेम इसकी जरूरत नहीं है हमारे को। ठीक है, तो वी कैन जस्ट क्लोज दिस ब्रैकेट ओवर हियर एंड सी हाउ डू वी गेट द डेट नाउ। We will get the date in this particular format. So format function is used to convert the format of any answer, you might say. Okay. For example, suppose मुझे amount के साथ में डॉलर चाहिए, तो what I will do is I'm just explaining the format function to you all because you had missed it yesterday. So I will take sales में से मैं ले लेता हूँ अपना, ये सेल्स ले लेता हूँ, टोटल सेल्स। ठीक है, तो 71 मिलियन आ गया ना। उसके आगे मुझे डॉलर चाहिए। ठीक है, तो व्हाट आई कैन डू इज इसको हम करेंगे, यहाँ पर एक्चुअली हमें कोई फंक्शन लेना पड़ेगा, मतलब मेजर लेना पड़ेगा। तो आई एम टेकिंग, दिस इज अ कॉलम, दीज आर कॉलम, जहाँ पे ये सिग्मा बना आता है और साथ में पीछे टेबल बना रही है, दैट मीन्स इट इज अ कॉलम इन द टेबल। बट आई वॉन्ट टू टेक अ मेजर, तो हम यहाँ पे ये ले लेते हैं कॉस्ट पर यूनिट का मेजर। ठीक है, अब ये मैंने मेजर लिया। ठीक है, सो लेट मी रिमूव द सेल्स एंड लेट मी पुट कॉस्ट पर यूनिट। सो इट इज शोइंग मी दिस अमाउंट। ठीक है, इस तरीके से ऑटोमेटिकली डॉलर में ही दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है? क्योंकि यहाँ पे मैंने फॉर्मेट लगा दिया था, तो फॉर्मेट एंड दिस सेल्स पर यूनिट माइनस प्रॉफिट पर यूनिट, तो इट इज अ कॉस्ट पर यूनिट एंड एक कॉमा लगा के $0.00, तो इट इज गिविंग मी इन डेसिमल। सपोज आई रिमूव दिस 0.00 एंड आई कीप इन्वर्टेड कॉमा में $0, तो सी व्हाट इट इज गोइंग टू गिव मी एज अ रिजल्ट नाउ। सो इट इज गिविंग मी द राउंड फिगर माइनस में। ठीक है, अगर आपको स्पेस देना है, डॉलर के बाद एक स्पेस आए, तो आप स्पेस टाइप कर दीजिए, तो इट विल गिव अ स्पेस। ठीक है, लाइक दैट। सो दिस इज द थिंग टू बी नोटेड ओवर हियर, है ना। आप आई गेस कलर लगा सकते हैं क्या हम इसमें? These all functions are to be remembered. गुड क्वेश्चन। सी, इफ यू रिमेम्बर देन इट इज गुड, इफ यू डोंट रिमेम्बर देन चैट जीपीटी है ना, तो आप कुछ रिमेम्बर करने का जरूरत नहीं है इनफैक्ट, या रेफरेंसर है हमारे पास। जैसे एक्सेल में भी क्या होता है कि हमको अगर फॉर्मूले आते हैं तो हमको ढूंढने की जरूरत नहीं है, और नहीं आते हैं तो फिर ढूंढ लेते हैं, ढूंढ के काम हो ही जाता है हमारा। तो नहीं कितने ही तो याद रख लोगे, है ना। वो क्वेश्चन ये है कि हाउ मच, हाउ हाउ मेनी कैन वी रिमेम्बर एंड हाउ मेनी वी नीड टू रिमेम्बर। तो कुछ ऐसे फंक्शंस हैं 10-15 जो कि याद होने चाहिए डैक्स के अंदर,
तो जो अगर आप हार्ड कोर कोडिंग कर रहे हो या बहुत सारे कॉलम्स बना रहे हो या कुछ ऐसा स्पेसिफिक रिपोर्ट बना रहे हो जिसके अंदर आपको प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, ये क्वार्टर टू क्वार्टर कंपैरिजन ये चाहिए, तो उसके लिए आपको याद करने पड़ेंगे। नहीं करोगे तो भी अटकोगे नहीं, है ना। लेकिन जब तक हमें फॉर्मूला लिखना नहीं आएगा, प्रॉपर डैक्स क्रिएट करना नहीं आएगा, तब तक वी कैन नॉट गेट द प्रॉपर पर्टिकुलर रिजल्ट। बेसिकली दिस इज व्हाट आई वुड से। तो जितने याद हो जाते हैं उतना अच्छा। अब जैसे ये है, पैरेंथेसिस है, कहाँ पे लगाना होता है, कहाँ पे बंद करना होता है, अरिथमेटिकल ऑपरेटर कौन से होते हैं ना, कंपैरिजन ऑपरेटर कौन से होते हैं, टेक्स्ट कॉन्कैटिनेटर क्या होता है, लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है, तो ये हमें पता होने चाहिए। ठीक है, इसको हम्म। कैसे यूज करना है। सो इफ यू नो दिस देन थिंग्स बिकम इजी। इफ यू डोंट नो दिस तो फिर थोड़ा सा एफर्ट जाता है, थोड़ा टाइम वेस्ट होता है, मतलब ढूंढने में, करने में। और कई बार जो हम चीजें ढूंढ रहे होते हैं ना वो मिलती भी नहीं है। तो ऐसा है, जैसे यहाँ पर है प्लस प्लस कर देगा, माइनस माइनस कर देगा। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। सो लेट अस क्रिएट अ न्यू मेजर। और मैं आपको आई एम जस्ट शोइंग यू स्मॉल स्मॉल थिंग्स, कॉन्सेप्ट्स ओनली। लेट से मैं यहाँ पे बोलता हूँ एडिशन, और मैंने एडिशन लिखा और इज इक्वल टू कर दिया 2 + 2। ठीक है। अब 2 और 2 तो ग्रीन में आ रहा है, ये प्लस इसके बीच में ऑपरेटर है। ठीक है, तो इट विल गिव मी व्हाट, 4। इट विल गिव मी 4 एज अ रिजल्ट। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे एक नया कॉलम ऐड हो, नया मेजर ऐड हो जाएगा एडिशन के नाम से। इधर गया, ये रहा इधर, है ना। ये अपेंड वाला जो डेटा था ये कल मैंने ले लिया था, इसको हमको उड़ाना है एक्चुअली। सो जस्ट अ मिनट। अब मुझे फिर से फंक्शन बनाना पड़ेगा, अगर उड़ा दिया ना उससे। सो वी विल क्रिएट माई प्रोडक्ट। मैं इसमें सेल्स वाले टेबल में आ जाता हूँ। अब देखिए, अगर आपको नया मेजर बनाना है ना, तो यहाँ पर आप जाते हैं न्यू कॉलम के साथ में, ये ऑप्शन आते हैं न्यू मेजर। राइट क्लिक करेंगे तो वी कैन क्लिक ऑन हियर ऑल्सो। तो न्यू मेजर आ जाएगा। एंड आई वॉन्ट टू क्रिएट अ एडिशन मेजर। ठीक है, एडिशन इज इक्वल्स टू, मैंने लिखा 100 + 100, तो इट विल गिव मी 200 एज अ रिजल्ट। ठीक है, ये एडिशन आ गया। अब मैं होम टैब में जाता हूँ, लेट मी टेक अ कार्ड। ये कार्ड ले लिया हमने, और इस कार्ड में हम पुट कर देंगे ये 100। तो ये 200 हो गया, है ना। तो दिस इज अ सिंपल एडिशन फंक्शन। अब इसको डबल क्लिक करते हैं। एडिशन की जगह अगर मान लो मुझे प्रोडक्ट निकालना है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा प्रोडक्ट, और यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगा। तो ये प्रोडक्ट बन गया। प्रोडक्ट नाम पहले से यूज है, तो प्रोडक्ट 1 कर देते हैं हम तो। तो एक नया आ जाएगा प्रोडक्ट 1। ठीक है, और 10K दिखा दिया इसने, दिखा दिया 10K, 10,000। ठीक है, अगर इसको मैं 1 लाख कर देता हूँ यहाँ पर, 1,200 करता हूँ, 1 लाख हो जाएगा, 100K हो गया। इसको यहाँ पे करेंगे तो 1 मिलियन दिखा दे। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट हो गया। अगर 10 to the power 10 कर देते हैं अपन, मान लो जब 10 की पावर 1,000 कर देता हूँ मैं, एक्सपोनेंशियल लगा देता हूँ यहाँ पर। सो इट इज ज्यादा हो गया क्या, 10 to the power 10, 2 की पावर 10 कर देते हैं, छोड़ो। तो 1024 आ गया। आर यू गेटिंग इट। तो ये ऑपरेटर हमें पता होना चाहिए कि व्हाट डज द ऑपरेटर डू। करेक्ट। तो ये सिंपल ऑपरेटर्स है। कंपैरिजन वाले में पता ही है कि कंपैरिजन कैसे करना होता है। जहाँ पर भी नंबर होगा वहाँ पे विदाउट विदाउट इन्वर्टेड कॉमा हो जाएगा। जहाँ पे नंबर नहीं होगा वहाँ पे आपको इन्वर्टेड कॉमास लगाने पड़ेंगे। ठीक है। टेक्स्ट को ज्वाइन करने के लिए आप डबल एम्परसेंड लगा सकते हैं। मान लीजिए कि नया कॉलम बनाना है हमारे को, यहाँ पे मैं बना के दिखा देता हूँ। सपोज आई गो टू द रीजन। इन दिस टेबल आई वांट टू क्रिएट अ कॉलम फॉर कंट्री एंड ग्रुप। ग्रुप और उसके आगे कंट्री है, एक नया कॉलम ऐड करना, तो विल गो टू न्यू कॉलम।
एंड आई वांट टू क्लब द ग्रुप एंड द कंट्री। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा ग्रुप प्लस कंट्री, ऐसा कोई कॉलम बनाना है। तो अब आप क्या करोगे, एम्फरसेंड लगा के कर सकते हो। तो पहले मुझे चाहिए ग्रुप, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ग्रुप, रीजन का ग्रुप, और फिर मैंने डबल एम्फरसेंड लगा दिया, या सिंगल एम्फरसेंड लगाया सॉरी, और यहाँ पे लगाया रीजन और कंट्री, और कर दिया बंद। तो आ गया क्या, देखिए। बट मुझे बीच में हाइफन भी चाहिए, तो एंड के बाद हम क्या करेंगे, वी विल टाइप इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हाइफन और एक और एंड लगा देते हैं। तो अब देखो, कैन कुड वर एम आई एबल टू क्रिएट अ न्यू कॉलम विद द कॉम्बिनेशन ऑफ अ ग्रुप एंड कंट्री, यस और नो? यस यस। सो दिस इज व्हाट वी नीड टू लर्न। Sir, I have one question. We can do this by also Power Query, right? हाँ, वी कैन डू दिस इन पावर क्वेरी ऑल्सो। Sir, then it is when it is beneficial to do in Power BI rather than Power Query, or it doesn't have like. इसको कोई आंसर करना चाहेगा जो इसने क्वेश्चन पूछा है? मैं करूँ उससे पहले, आपको क्या लगता है कि पावर क्वेरी में कर लेना चाहिए या पावर बीआई में भी कुछ करने का बेनिफिट है? व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज द डिफरेंस विल इट मेक? सर पावर क्वेरी में करेंगे तो अल्टीमेटली पावर बीआई केस में शो हो ही जाएगा। हाँ, तो इसका मतलब कि ये अ, जब पावर क्वेरी में काम हो जाता है तो कोई डेक्स क्यों करे ऐसा? क्या हम ऐसा कंक्लूजन कर दें क्या? नहीं, वहां से ही ले सकते हैं ना, वहां पे कर हाँ नहीं हाँ, सकते। मैं कब मना कर रहा हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, पावर क्वेरी में तो और अच्छे से होगा। अभी हम पावर क्वेरी में ही जाते हैं। अच्छा, मैंने डेक्स बनाया है, डेक्स से कॉलम ऐड करा, क्या वो पावर क्वेरी में दिखाएगा मुझे? विल इट शो मी इन द पावर क्वेरी? नहीं। हाँ, दिखाना तो चाहिए। हम्म, नहीं 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 दिखाएगा। नहीं दिखाएगा। चलिए देखते हैं, दिखा रहा है क्या? नहीं। नहीं दिखा रहा। समझ में आया क्यों नहीं दिखा रहा? क्योंकि ये हमने पावर क्वेरी में वही डेटा आता है जो कि सोर्स से आता है। सोर्स से हम जो भी चेंजेस करते हैं पावर क्वेरी के अंदर, वो टेम्पररी फेज होता है। पावर क्वेरी में जो भी चेंज करके लोड करेंगे, वो पावर क्वेरी का डेटा पावर बीआई में लोड हो जाता है, ठीक है। लेकिन पावर बीआई में आप कोई भी मेजर, कोई भी कॉलम ऐड करके वापस पीछे जाएंगे, तो पीछे इसका सोर्स क्या है, इसका सोर्स क्या है, देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड द लॉजिक। इसका सोर्स इज माई सोर्स डेटा, ठीक है। आई एम नॉट चेंजिंग द सोर्स, तो हाउ विल इट चेंज, हाउ विल इट शो मी द अपडेटेड थिंग्स? अब मान लो यही काम मुझे पावर क्वेरी में करना होता, तो कैसे करते हैं? तो आप ऐड कॉलम पे जाते हैं। अब यहाँ पे कोई हम फंक्शन लगा नहीं रहे हैं, कोई कंडीशनल कॉलम लगा नहीं रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हम सीधा चूज करेंगे कॉलम फ्रॉम एग्जाम्पल्स, जो मैंने अभी तक नहीं बताया था, अब बता रहा हूँ। कॉलम फ्रॉम एग्जाम्पल्स। और आप लोग बहुत भोले लोग हो, मतलब किसी ने पूछा भी नहीं कि सर ये पावर क्वेरी के अंदर इतनी सारी चीजें हैं, ये कब बताओगे? करेक्ट सर। कितने कितने भोले लोग मिल गए मुझे, है ना? और इसलिए तो लोग, है ना, वो बन जाते हैं, मामू बन जाते हैं जब बड़े बड़े मामू। कोर्सेज खरीद लेते हैं। क्योंकि वो कोई नहीं, ये सब चीजें कोई नहीं बताता, कोई पूछता भी नहीं है। ठीक है ना, जितना बता रहा है उतना ही सीख ले, वही बहुत है हमारे लिए, तो है ना, उतना भी नहीं सीखते हैं। एनीवेज, सर नई नई लैंग्वेज में यही होता है, जितना सीख रहे हैं वही बहुत है। हाँ, अरे वो उतना बहुत ज्यादा है जो आपने सीखा है ना, इट इज वेरी वेरी मच व्हाट इज टॉट इन अ नॉर्मल पावर बीआई क्लास। मैं बता रहा हूँ आपको, मैंने 5 5 10 10 घंटे के सेशन भी करके खत्म कर दिया पावर बीआई। क्योंकि सामने वाले ने कहा नहीं, इतना ही सिखाना है, मैंने ठीक है। तो अब जितना जितना आप सिखाना चाहोगे उतना ही सिखाऊंगा ना मैं तो। अगर आप 5 दिन का कोर्स कराना चाह रहे हो उस पे ऊपर, तो 5 दिन के अंदर जितनी चीजें पॉसिबल है उतनी ही वो होगी, बस सिंपल सी बात है, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा।
अब मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे लिखा ऐड कॉलम करके मैंने लिखा रीजन डैश कंट्री, ये कॉलम का नाम दे दिया। और मैंने एक एग्जांपल बता दिया भैया, यहाँ से उठाओ नॉर्थ वेस्ट, और यहाँ से उठाओ यूनाइटेड स्टेट्स, और एंटर कर दिया। बन गया, देखो कॉलम ने। इसने मतलब पैटर्न उठा लिया। पैटर्न, फ्लैश फिल सिखाया था, फ्लैश फिल पता है एक्सेल में? हाँ 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 हाँ। बस फ्लैश वैसा ही, फिल। बस वैसा ही। सर ये तो एक्सेल में कॉन्केटनेट लगाते तो भी मतलब सम कर देते दो से उनको बिल्कुल सेल। बिल्कुल, हाँ हाँ होता है ना। कॉनकैटिनेट का फंक्शन पावर बीआई में भी है, वो भी मैं वही मैं कह रहा हूँ। लेकिन ये बताने का पॉइंट ये है कि आप पावर क्वेरी में भी चीजें कर सकते हो और पावर बीआई में भी चीजें कर सकते हो, है ना। लेकिन पावर क्वेरी को करने के लिए हमारे को कोई फंक्शन फॉर्मूला डैक्स फैक्स ये सब याद करने का जरूरत नहीं है, ये सब समझने का जरूरत नहीं है, करेक्ट। लेकिन फिर भी पावर क्वेरी का, पावर बीआई का डेक्स इज इम्पोर्टेंट, अदरवाइज अपना कोर्स खत्म है। अगर अगर डेक्स नहीं पढ़ाना तो मेरे तरफ से आपको जो पावर बीआई में मेरे को सिखाना था वो मेरी तरफ से मैं सिखा चुका हूँ। अब आपको एक्सप्लोर करके बोलना है कि सर ये तो हमें आया ही नहीं, ये तो आपने बताया ही नहीं, ये है। ओके। सो व्हाट हैपेंस इज बेसिकली व्हेन यू ऐड एनी कॉलम इन पावर बीआई, इट इंक्रीजेस द डेटा इन योर डेटा सेट, है ना। वो आपको एडिशनल आप कॉलम बनाते जा रहे हो तो आपका डेटा बढ़ता जा रहा है। जैसे ये देखो, एक कॉलम मैंने ये उधर से बना के लाया, ये इधर से बना के लाया, सेम ही आंसर आया ना। यहाँ पे रीजन मैंने कंट्री कर दिया, यहाँ पे ग्रुप कंट्री करा, बात तो एक ही हुई ना, लेकिन, है ना। दोनों दोनों अप्रोचेज इज राइट। नाउ विच वन यू शुड यूज, दैट इज डिपेंडिंग ऑन यू, व्हाट यू आर मोर कंफर्टेबल विथ। अगर आपको लगता है नहीं मैं कोडिंग में अच्छा हूँ, या मेरे को फॉर्मुलेस लगाने अच्छा लगते हैं, तो आप ऐसे कर सकते हो। अगर आपको लगता है नहीं पावर क्वेरी इज बेटर, तो गो विथ पावर क्वेरी। नो वन इज आस्किंग यू द लॉजिक हाउ यू हैव डन दिस, पीपल वांट टू सी द रिजल्ट्स ओनली। इज इट क्लियर? यस। है ना। तो एक जी। कॉलम उड़ा देते हैं यहाँ से। अब इसका फायदा क्या होगा सर, रीजन कंट्री का इसका फायदा ही होगा, आप इसको इसको यूज में ले लो। मान लो कोई चार्ट बनाना है मुझे, तो मुझे रीजन और कंट्री वाइज सेल्स देखनी है, मान लो दोनों का कॉम्बाइंड सेल्स देखना है। तो वाई एक्सिस में आप रीजन में से एक और कैटेगरी मिल गई आपके पास रीजन और कंट्री का, वो डाल दो, और फिर एक्स एक्सिस में सेल्स डाल दो, तो यू विल गेट दैट। सो आई माई जॉब इज टू गिव यू skills. Your job is to apply those skills. How you can apply that depends on your uh, intelligence and your use case. ये देखो, ये कनाडा कनाडा इस टाइप से सेल्स आ गया। गेटिंग इट? ठीक है। चलिए, कमिंग बैक टू आर दिस थिंग, हम थोड़ा सा टाइम इंटेलिजेंस वाले फंक्शंस पे बात करते हैं, जो काम की बात है उसी पे करेंगे। तो ये डबल एंड क्या करता है? अब देखो, मैं थोड़े से अच्छे ट्रिकी ट्रिकी पॉइंट्स आपको सिखाता हूँ, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। ये क्या कह रहा है डबल एंड, यू एबल टू सी माई पीडीएफ ऑन माई? यस। यस यस। 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 ओके, ओके, परफेक्ट परफेक्ट। ठीक है, लेट अस सी दैट, लेट अस रीड दिस। डबल एम्फेसिस क्या करता है? क्रिएट्स अ एंड कंडीशन बिटवीन टू एक्सप्रेशन दैट ईच हैव अ बूलियन रिजल्ट इफ बोथ, बूलियन का मतलब क्या होता है? ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है। सो इफ बोथ एक्सप्रेशन रिटर्न ट्रू, द कॉम्बिनेशन ऑफ द एक्सप्रेशन ऑल्सो रिटर्न ट्रू, अदरवाइज द कॉम्बिनेशन रिटर्न्स फॉल्स, ठीक है। तो अब आपको देखना है कि रीजन में फ्रांस है क्या और बाइक बायर में यस है क्या। अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू होगा तो आपका रिजल्ट ट्रू आएगा। पाइप यूज करेंगे तो और हो जाएगा कि या तो ये या फिर ये, ठीक है। तो अगर मान लो मुझे कोई पर्टिकुलर सेल्स ढूंढना है कि यार इस कंट्री में इस प्रोडक्ट का सेल हुआ है क्या, ऐसा कुछ कॉलम बनाना है, ऐसा कोई कैलकुलेशन करना है, ऐसा कोई टेबल बनाना है, तो आप ये एंड फर्स्ट एंड यूज कर सकते हो, और करना है तो पाइप यूज कर सकते हो, इसका ये यूज है, ठीक है। नाउ, operators and precedence order. In some case, the order in which the calculation is performed can affect the return value. Therefore, it is important to understand how the order is determined and how can the change the order. How can you change the order to obtain the desired result? अब यही इंपॉर्टेंट चीज होती है, जब आप नेस्टिंग करते हो ना, फॉर्मूला के अंदर फॉर्मूला यूज करते हो, तो कौन सा वाला पहले परफॉर्म होता है? अंदर वाला।
फिर आउटर वाला, फिर उसके आउटर वाला। तो सीक्वेंसिंग हमें पता होनी चाहिए कि हाउ डज इट वर्क, एंड अकॉर्डिंगली बाय चेंजिंग द सीक्वेंस यू कैन चेंज द डिजायर्ड रिजल्ट एज वेल। The expression evaluates the operator and values in the specified order. All expression always begin with the equal to sign. The equal to sign indicates the succeeding characters constitute an expression, है ना। तो ये तो बेसिक चीज थी। अब इससे आगे बढ़ते हैं अपन। नाउ, अब ऑपरेटर प्रेसिडेंस, है ना। तो यहाँ पर तो चलो ठीक है, यूजिंग प्रेसिडेंस टू कंट्रोल। बॉडमस रूल तो सबको पता ही है, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होते हैं। तो 5 + 2 × 3 लिखा है, तो पहले क्या करेगा, BODMAS, तो पहले मल्टीप्लाई करेगा फिर प्लस करेगा, है ना। लेकिन आपको पहले प्लस करा के फिर मल्टीप्लाई करना, तो आपको ब्रैकेट लगाना पड़ेगा कि भाई 5 + 2 को प्लस कर, फिर 3 से मल्टीप्लाई कर। अगर आपको दो एक्सप्रेशन को एक साथ ऐड करके फिर दो एक्सप्रेशन को माइनस करके फिर उनका डिवीजन चाहिए, तो आपको दोनों के बीच में ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। ब्रैकेट आपने लगा दिया, पैरेंथेसिस बोलते हैं उसे ब्रैकेट को, तो वो सुपरसीड करेगा किसी और कैलकुलेशन से। ये सब कुछ बेसिक कोडिंग फंडाज हैं, दैट मच वी शुड नो, है ना। बहुत बेसिक बेसिक कराओ ना, मैं आपको बहुत एक्सपर्ट नहीं बना सकता पावर बीआई में इतने कम टाइम में। लेकिन हाँ, इतना बना सकता हूँ कि आप आगे से खुद से सीख सकते हो, और आगे सीखने की जो वो है वो आप पे डिपेंड करता है कि कितना आप सीखना चाहते हैं। ठीक है। नाउ यार, ये दिक्कत दे रहा है मुझे, इसको बैन कर देते हैं। ठीक है। नाउ सी, तो ये हो गया मेरा। अब लेट्स मी मूव टू द नेक्स्ट पेज। देखो यहाँ से ना, टैक्स फंक्शन रेफरेंस, टैक्स टेबल क्वेरीज, यहाँ से है ना, ये चीजें हमारे को इंपॉर्टेंट थोड़ी थोड़ी समझनी चाहिए। तो आई एम कमिंग टू दिस टैक्स टेबल क्वेरीज पार्ट फर्स्ट। ठीक है। अब देखो, इसका मतलब क्या, डेक्स क्वेरीज अलाउ द यूजर टू रिट्रीव डेटा डिफाइंड बाय द टेबल एक्सप्रेशन फ्रॉम द एक्स वेलोसिटी इन द मेमोरी एनालिटिकल इंजन। दिस यूजर कैन क्रिएट मेजर एज अ पार्ट ऑफ क्वेरी, है ना। अब देखो, ये सब इतना टेक्निकल पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम एक एग्जाम्पल से बात करते हैं। ठीक है, टाइम एंड इंटेलिजेंस फंक्शंस पे आ जाते हैं। और यहाँ पर देखो, अब जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन ये इन्होंने दे रखा है, क्लोजिंग बैलेंस ईयर या क्लोजिंग बैलेंस क्वार्टर, उस क्वार्टर का लास्ट डेट का क्या वैल्यू है ना, ये हमें करना है। तो इसके लिए देखो, ऊपर कोड दिया है, क्लोजिंग बैलेंस मंथ इज इक्वल्स टू सम एक्स। सम एक्स क्या करता है, मल्टीप्लाई करके टोटल निकालेगा, है ना। तो सम एक्स या प्रोडक्ट इन्वेंट्री, ये टेबल का नाम है, प्रोडक्ट इन्वेंट्री यूनिट कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट इन्वेंट्री यूनिट बैलेंस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेगा। फिर डेट टाइम में डेट की मतलब डेट कॉलम, उसका उस पर्टिकुलर डेट का लास्ट क्वार्टर का मंथ डेट लेके उसके यूनिट प्राइस को बैलेंस से मल्टीप्लाई करेगा, तो हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा, है ना? इस तरीके से ये फंक्शन लिखा हुआ है। ठीक है। नाउ लेट मी शो यू सम प्रॉपर यूज केस, तो आपको समझेगा। Now, okay. Dates YTD function. Return a table that contains a column of the dates of the year to date in the current context. ठीक है। Now, let me tell you this. हम एक नया डेट कॉलम बना सकते हैं, एक टेबल ही नया बना सकते हैं। ठीक है। मैं आपको कुछ कुछ फंक्शंस करके देखूं। फॉर एग्जाम्पल, नाउ सपोज हाउ टू क्रिएट अ न्यू टेबल। न्यू टेबल कैसे बनाएंगे, किसी को पता है? हाउ डू क्रिएट अ न्यू टेबल? मतलब डेटा ही नया चाहिए मुझे,
कुछ अपने मन का डेटा करना है, तो कैसे बनाऊंगा? टेबल कैसे ऐड होगी? ये तो डेटा इतना ही है, इतनी ही टेबल्स है, नई टेबल कैसे बनाऊंगा? इफ आई राइट क्लिक, डू आई गेट a new table option or create table option? No, I can add a new column, I can add a new measure, but I want to create a new table. Now how do I create a new table? इंसर्ट में ऑप्शन आते हैं क्या? और इंसर्ट में गेट डेटा। इंसर्ट में जाके गेट डेटा, सर गेट को डेटा। पायलट नीचे, हम्म। को पायलट के नीचे सर कुछ तो एक एरो दिख रहा है प्लस का। उस प्लस से कुछ नहीं होगा, उस प्लस से तो ये ऑप्शंस आप ऐड कर सकते हो। देखो यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा है एंटर डेटा आपको। गेट डेटा में एक ऑप्शन था एंटर डेटा, ये है क्रिएट अ न्यू टेबल बाय टाइपिंग और बाय पेस्टिंग इन द न्यू कंटेंट। सो व्हेन यू क्लिक ऑन दिस, इट विल क्रिएट अ न्यू टेबल। देखो नजर के सामने है, लेकिन फिर भी नजर में नहीं आ रहा है। ये आपके सामने ही था ना यहाँ पर, लेकिन हमारी नजर नहीं गई इस पे। नाउ सपोज आई वांट टू ऐड अ कॉलम, लेट्स से डेट। ठीक है, और मैं यहाँ पे डाल देता हूँ आज के डेट, आज का हो गया 3/2/2025। ये मैं मैन्युअली एंटर कर रहा हूँ हाँ। और सेव, बस। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ डे। आज हो गया मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। ये मेरा टेबल बना दिया। ठीक है, क्रिएट टेबल। अब क्या करें, इसको क्लोज कर दें। कहाँ आएगी वो टेबल? दिख रहा है आपको कहीं? आपने सेव नहीं किया, इसको लोड नहीं किया, इसलिए वो नहीं। टेबल का नाम देना, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ डेट टेबल। फर्स्ट यू हैव टू गिव अ नेम, डेट टेबल। अगेन, सो आई विल ऐड डेट, मैं सिर्फ डेट ऐड करता हूँ अभी। तो फर्स्ट वेब से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब मैं करता हूँ लोड। नहीं चलो, कैन यू सी द डेट टेबल नाउ? कैन यू सी द डेट टेबल? और डेट टेबल के अंदर क्या दिखेगा आपको? डेट। डेट कौन सी दिखेगी? अब मैंने तो सिर्फ डेट लिखी थी ना, तो यहाँ पे ईयर, क्वार्टर, मंथ, डे कैसे आ गया अपने आप बताओ? और यहाँ पे भी आप देखेंगे, और if I go to the date, if I select the date table, what do you see now? Do you see uh, the day also and the month also and proper date also? Correct? समझा आपको? Are you getting it? यस सर। है ना? And we can change the format. ठीक है, अब मान लो आई वांट टू ऐड अ न्यू कॉलम टू दिस, आई वांट टू गेट द डे आल्सो। डेट के सामने मुझे डे चाहिए, तो मैं क्या करूँगा? राइट क्लिक करूंगा, न्यू कॉलम करूंगा। अब आप कमल, आप पूछ रहे थे कि हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, याद करना है क्या? अब मान लो मैं आपसे पूछता हूँ, या आपका बॉस आपको बोलता है कि डे का या डे निकालो, मुझे ये देखना है कि कौन से दिन पे लोग ऑर्डर कर रहे हैं। अब आप कैसे निकालोगे? आपको नहीं आता फॉर्मूला, अब आप क्या करोगे तो? मुझे नहीं पता है कि डेट में से डे कैसे निकलेगा। सर आपने साइड में वो जो कॉलम के नीचे जो डेट लिखा हुआ है हम्म। उसको होवर करेंगे। क्या करेंगे? क्या करूं? एक मिनट, कॉलम। डेट टेबल में मैंने कॉलम ऐड करा है, ठीक है, तो ये नया हाँ। कॉलम ऐड हो गया। यहाँ पे मुझे जी। चाहिए डे। डे चाहिए मुझे, डे।
इज इक्वल टू, मैंने डे का फॉर्मूला लगाया इज इक्वल टू, अब मुझे नहीं पता कि डे का क्या होता है। अब मैंने लिखा डे, तो देखो डे के इतने सारे आ गए, फॉर्मूले आ गए। हाँ अब हाँ। डे अगर आप खोलते हो तो यहाँ बोल रहे हैं रिटर्न्स द नंबर फ्रॉम 1 to 13 रिप्रेजेंटिंग द डे ऑफ द मंथ। ये डे ऑफ द मंथ बता रहे हैं 1 से लेके 7। तो अगर मैं डे फंक्शन करके डेट कॉलम लूंगा ना तो 1 2 3 4 5 6 7 आ जाएगा। मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे चाहिए मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे। आप देखोगे तो यहाँ पे नीचे लास्ट में एक ऑप्शन दिख रहा है ठीक है। वीक डे का, दिख रहा है। ये क्या बोल रहा है, हाँ। रिटर्न्स अ नंबर फ्रॉम 1 to 7 आइडेंटिफाई द डे ऑफ द वीक ऑफ द डेट। यही मुझे चाहिए, यस यस। है ना। सो नाउ इट इज आस्किंग फॉर अ डेट, सो डेट मीन्स व्हाट, डेट कॉलम। सो आई से टाइप डेट, डेट टेबल। ये देखो ये हमारा डेट टेबल है, ये डेट टेबल है और डेट कॉलम, ये मैंने डेट कॉलम दे दिया इसको, ठीक है, डेट कॉलम। अब देखो इसमें ये ऑप्शन दे रहा है आगे, डॉट डेट डॉट ये सब, ठीक है। मान लो हमने ये लगाया डॉट डे, कॉमा, है ना। अब 1 का मतलब क्या है, संडे 1 थ्रू सैटरडे 7, मतलब संडे को 1 बोलेगा ये, ठीक है। ये नहीं चाहिए हमारे को, मंडे को 1 बुलवाना है। तो मंडी वाला सिलेक्ट करते हैं, एंटर करते हैं, है ना। तो इसने क्या करा, ये दे दिया। एक सेकेंड, लेट मी रिमूव दिस एंड लेट मी जस्ट राइट टू, नाउ सी, है ना। नाउ इट इज गिव मी द डेज 6 7 1 2 3 4 5, है ना, इस तरीके से दे रहा है। तो अब अपन क्या करेंगे, वी वांट टू हैव अ डे नेम। तो इफ आई सेलेक्ट 3, तो ये नंबर चेंज कर देगा, है ना। इट विल गिव मी डिफरेंट नंबर्स बट स्टिल आई एम गेटिंग द आंसर इन नंबर, आई एम नॉट गेटिंग द आंसर इन डे, ठीक है। तो वीक डे से क्या हुआ कि आपके पास नंबर आ गए, बट आई वांट यू, यू वांट द नेम ऑफ द डे। अब देखो यहाँ पर क्या है, रिटर्न द नेक्स्ट डे, रिटर्न द प्रीवियस डे, टुडे, रिटर्न टुडेज यूटीसी, रिटर्न यूटीसी कोड, वीक डे, है ना, नेटवर्क डेज। ये एक कूपन, कूपन डेज का फॉर्मूला है। तो ऐसा अलग अलग फॉर्मूला, आई डोंट नाउ, वी आर नॉट श्योर कि भी कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, बिकॉज यहाँ पे तो वो डे तो आ ही नहीं रहा ना। रिटर्न अ नंबर फ्रॉम 1 to 13, ठीक है। तो व्हाट डू वी डू, इसमें एआई भी कुछ नहीं करेगा आपको, है ना। या मतलब इसका जो एआई वाला फीचर है, इट विल नॉट हेल्प यू विद दिस। मैं बताता हूँ कैसे, ठीक है। पूजा, यू आर सेइंग गेट डेटा, व्हाट डू यू मीन बाय गेट डेटा। ये आपने पहले लिखा था, अच्छा सॉरी। एक मिनट, मैं अब आपको दिखाता हूँ कि एआई क्या करेगा। जैसे हम यहाँ पे गए और हमने कहा एआई फंक्शन से क्वेश्चन पूछा, ठीक है। इसको आने दो, आई एम जस्ट टेलिंग यू द इम्पोर्टेंस ऑफ डैक्स फंक्शन और नोइंग द डैक्स फंक्शन, ठीक है। मैं यहाँ पे बोलता हूँ गिव द डे फ्रॉम डेट। देखो यहाँ पे क्या आ गया, ये डेट आ गई, ये वही वाली डे आ गई, डे और डे आ गया, है ना। अब मैं यहाँ पे करता हूँ डे की जगह डे नेम, या डे नेम फ्रॉम डेट। डे नेम इसको समझ में नहीं आया, ठीक है। डे ऑफ द वीक कर देते हैं। वापस से इसने ये दे दिया। अब मैं यहाँ पे करता हूँ डे के आगे ब्रैकेट में लेता हूँ मंडे। स्टिल इट इज नॉट एबल टू गिव मी, फिर क्या करें बताओ। हाउ डू आई एक्सप्लेन दिस टू एआई, ठीक है, नहीं आ रहा। तो व्हाट वील डू, वील गो टू चैट जीपीटी नाउ and say I wish to get the day name from the date,
in Power BI using DAX. Okay, give me the function which can do it. एग्जाम्पल देते हैं इसको. 1/2/2025 is should return. 1 तारीख को क्या था? संडे, सैटरडे. तो सैटरडे. अब देखो, ये जो वीकडे फंक्शन था वो हमारा सही लगाया था हमने बिल्कुल. ठीक है, वीकडे फंक्शन वाज द राइट फंक्शन, बट उसके साथ में हमें क्या लगाना, फॉर्मेट. तो इसका मतलब कि देर इज नो फंक्शन विच एग्जिस्ट इन पावर बी आई, इन डैक्स, विच कैन गिव यू द डे. या तो आप स्विच फंक्शन यूज करो. ठीक है, स्विच क्या करता है, स्विच में आपको बताना पड़ेगा कि 1 का मतलब मंडे होता है, 2 का मतलब वेनेसडे होता है, 3 का मतलब थर्सडे होता है, ऐसे सपोज किए. तो स्विच विल चेंज द वैल्यू ऑफ 1 to Monday. या फिर हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मेट यूज कर सकते हैं. ठीक है, तो लेट्स डू दिस. ये डेट कॉलम मेरा डेट वाले टेबल पे चले जाता हूँ. अब यहां पर ही हम इसी फॉर्मूले के आगे लगा देते हैं. इसको तो 2 कर देते हैं पहले. ठीक है, और अब हम क्या करेंगे, फॉर्मेट लगाएंगे. So here you will write format, and then you will write DDDT. आ गया? Have we got the format now? Have we got the name of the days? Yes, sir. No. Yes. है ना. सो दिस इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि है ना भाई, यहाँ आपको यूज पड़ेगा. अब आप चाहे चैट जीपीटी यूज करना चाहें, कुछ भी यूज करना चाहें, वो हम कर सकते हैं, है ना. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मुझे एक फंक्शन बनाना जो मुझे करंट ईयर का सेल्स को कंपेयर करके होता है प्रीवियस ईयर के सेल्स से. ठीक है, तो वो कैसे लिखूंगा मैं कि करंट ईयर का सेल्स भी निकाल दे और प्रीवियस ईयर का सेल्स की निकाल के परसेंटेज चेंज निकाल दे कि कितना हुआ है ना. तो यहाँ पर हम ये लिखते हैं कि write a DAX function to calculate the current year sales and previous year sales, and give me the give the percentage increase or decrease also. Now it is going to give you this. अब देखना इसका फॉर्मूला कैसे कैसे लिखा जाता है. तो पहले ये करंट ईयर सेल्स निकालने का फॉर्मूला है, तो कैलकुलेट फंक्शन यूज होगा, सम सेल्स अमाउंट और ईयर सेल्स डेट इज इक्वल टू ईयर टुडे. है ना. तो टुडे मतलब करंट ईयर, तो 2025 वाला लेके और फिर उसका ईयर एक्सट्रैक्ट कर लेगा. ईयर फंक्शन जो होता है वो एक्सट्रैक्ट ईयर कर लेता है ना. और ये प्रीवियस ईयर क्या करेगा, ईयर में से 1 माइनस कर देगा. फिर परसेंटेज चेंज निकालने के लिए आपको ये लिखना पड़ेगा. तो आपको 3 फंक्शन यूज करके करना पड़ेगा, और इसने ऑल्टरनेट भी दे दिया इसके. है ना. अब आप क्या करोगे, यू विल जस्ट कॉपी इट एंड पुट इट इन द डैक्स. तो यहाँ पे हम यहाँ पे सेल्स वाले में ही ऐड कर देते हैं नया मेजर. वी विल क्रिएट ए न्यू मेजर एंड वी विल कॉपी दिस. ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर ये एरर दिखाएगा क्योंकि हमारे पास सेल्स टेबल में सेल्स अमाउंट के नाम से कॉलम है या नहीं है, वो हमें चेक करना पड़ेगा. सेल्स में सेल्स ही है, सेल्स अमाउंट नहीं है, तो हमें वो थोड़ा सा और डेट के अंदर ऑर्डर डेट होगा आपके पास, तो ये ऑर्डर डेट करना पड़ेगा. नाउ दिस इज प्रॉपर फॉर्मूला. नाउ यू कैन गेट द करंट सेल्स. है ना. बट पता नहीं अभी भी आंसर आएगा नहीं आएगा. लेट अस चेक. बताता हूँ क्यों नहीं आएगा. तो ये हमारा फॉर्मूला रेडी हो गया. नाउ वी विल इंसर्ट अ कार्ड, एंड इन द कार्ड आई विल ऐड द करंट ईयर सेल्स, ये वाला.
ब्लैंक दिखा रहा है ना, कोई बता सकता है ब्लैंक क्यों दिखा रहा है? व्हाट इज शोइंग ब्लैंक? करंट ईयर सेल्स, व्हाट इज शोइंग ब्लैंक? एंड दिस इज द फॉर्मूला. चलो, आई वांट टू टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द थिंग्स नाउ. बताओ. सर वी आर नॉट ईयर टुडे। हाँ. सर टुडे सिलेक्ट किया है उधर, ईयर हाँ. टुडे। हाँ, टुडे की है. टुडे का ईयर निकालना है. देखो ये फंक्शन क्या करेगा, थोड़ा सा इतना सा ही समझाता हूँ मैं. ये क्या करता है, इसको छोटा सा एक नया फंक्शन बना के बता देता हूँ मैं आपको कि ये क्या करेगा. न्यू मेजर, पेस्ट. ठीक है, ये ईयर टुडे, ये फंक्शन क्या करेगा, मैं यहाँ पे कहता हूँ ईयर इज इक्वल्स टू. अब ये ईयर फंक्शन माना हमारा बन गया. इसमें एक काम करते हैं, मैं ईयर डाल देता हूँ. ये ईयर आ गया यहाँ पर. ठीक है, तो आई एम पुटिंग दिस. इसको निकाल के ईयर डाल देता हूँ. नाउ व्हाट वी आर गेटिंग हियर, व्हाट वी आर गेटिंग हियर. अरे आंसर 2025 आ रहा है. 2026। 5. हाँ, श्रेयस हैज क्रैक्ड इट. देखो हमारा जो डेटा है ना, उस डेटा में सेल्स कौन से ईयर की दे रखी है आपको? 2017 की दे रखी है. 2017 और 2018. 2017, 18, 19 and 20. These are the 4 years of which sales is given. In the formula, what I have done, in the current year sales, what formula we have used? Calculate sum of sales where the sales order is equal to year. टुडे. टुडे क्या करेगा, आज की डेट है 3 फरवरी 2025, उसमें से ईयर निकाल दिया, 2025 आ गया. लेकिन सेल्स ऑर्डर में 2025 करंट ईयर थोड़ा है. उस सेल्स का तो करंट ईयर 2020 है ना. तो हमें 2020 के लिए क्या करना पड़ेगा, -5 करना पड़ेगा ना यहाँ पर. तब हमारे पास रिजल्ट आएगा, अब दिखेगा हमारे. Now let me remove the year and let me put the current year. Am I getting 11 million? What is this 11 million now? Tell me. What is this 11 million representing? सर कौन सी ईयर का सेल है ये? 11 मिलियन. 11 मिलियन किसने, कौन सी ईयर का सेल है? अभी मैंने क्या करा, ईयर लिख दिया यहाँ पर. ठीक है, डेट टेबल बनाया, ईयर ले लिया, और ऑर्डर डेट में से ईयर ले लिया, और यहाँ पे हम सेल्स ले लेते हैं. हाँ, अभी दिख रहा है आप लोग को? थोड़ा सा इसका साइज बड़ा कर देता हूँ मैं, वैल्यूज का. 2020। 2020. 2020. 2020 का 11 है, 11 मिलियन है. ठीक है, इसको मिलियन में कर देते थोड़ा सा और क्लियरली समझ में आ जाएगा. तो वैल्यूज अब ये मिलियन में कैसे होगी, आपको जाना पड़ेगा स्पेसिफिक कॉलम में. ईयर पे नहीं करना है मुझे, मुझे करना है सम ऑफ सेल्स. सम ऑफ सेल्स में डिस्प्ले यूनिट्स मिलियन. ठीक है, तो ये 2020 11 मिलियन का हो गया. ठीक है, अब मैं अगर 17 मिलियन यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये ब्लैंक आ जाएगा क्योंकि मैंने ईयर चेंज कर रहा हूँ. ईयर चेंज करूंगा तो ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा. ठीक है, क्योंकि करंट ईयर में क्या लगाया अपन ने, अब हम प्रीवियस ईयर लगाते हैं. ठीक है, अब हम वापस से चैट जीपीटी से जाके प्रीवियस ईयर का फॉर्मूला कॉपी करते हैं. लेट मी कॉपी दिस फॉर्मूला, कॉपी एंड पेस्ट इट ओवर हियर इन अ न्यू मेजर. न्यू मेजर में जाएंगे, पेस्ट कर देते हैं. देखो आप लोग को यार मेहनत करनी पड़ेगी, जब तक आप खुद से नहीं करोगे ना चीजें, मजा नहीं आएगा. ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा ना, काम नहीं करेगा ये. क्यों? क्योंकि करंट ईयर टुडे 2025 दे रहा है. तो 2025 में से मैं माइनस ऑफ करूंगा, 2020 आएगा. 2020 में से 1 माइनस करूंगा तो आएगा मेरे पास 2019. तो ये मैं इतना लॉजिक मैं खुद से लगा रहा हूँ. ठीक है, और यहाँ पे हम ऑर्डर डेट करेंगे. अब हमारा ये प्रॉपर फॉर्मूला काम करने वाला है. ठीक है, नाउ लेट मी सेव दिस एंड लेट मी इंट्रोड्यूस वन मोर कार्ड.
to show you how it is going to give me the current sales. बंद हो जा भाई, नहीं चाहिए मुझे. Let me copy this card and let me put previous year instead of this current year. तो ये प्रीवियस ईयर की सेल्स कहाँ आएगी, यहाँ पर ही हमने ऐड करा था. कहाँ बन गया वो, प्रोडक्ट में तो नहीं चला गया, ये रहा प्रीवियस ईयर. तो यहाँ से निकालो, यहाँ पे ये वाला लगाओ. ब्लैंक आ रहा है क्योंकि 20, एक सेकेंड, इसको क्लियर ही कर देते हैं. आ गया. देखो इधर, ये है 11 मिलियन और ये 30 मिलियन आ रहा है. तो 11 मिलियन किसका था, 2020 का, और 2019 का कितना है, 30 मिलियन है. सही आ रहा है ये दोनों का. यस सर. सो आर यू गेटिंग नाउ the use of DAX function? And suppose I want to find out the percentage increase or decrease. इन दोनों के बीच में करंट ईयर से प्रीवियस ईयर में 30 मिलियन था, फिर 11 मिलियन ही रह गया, तो मतलब 19 मिलियन का नुकसान है. अब कितना परसेंटेज डिक्रीज हुआ वो निकालना है. वो कैसे निकालेंगे, उसके लिए भी आप फंक्शन, उसके लिए ये वाला फंक्शन लिखोगे. अब ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, जो करंट ईयर की सेल्स है उसको करंट सेल्स में स्टोर कर रहा है, वेरिएबल बना रहा है. प्रीवियस ईयर की सेल्स को प्रीवियस ईयर के वेरिएबल में स्टोर कर रहा है. फिर ये कह रहा है कि प्रीवियस सेल्स जीरो ब्लैंक, तो ब्लैंक दे दो. मतलब कोई ऐसा ईयर ले लिया जिसका पहला साल ही करंट ईयर है, तो प्रीवियस ईयर जीरो होगा, तो जीरो कर दो, ब्लैंक ले लो. नहीं तो क्या करो, करंट सेल्स को प्रीवियस सेल्स से माइनस करके डिवाइड बाय प्रीवियस सेल्स इंटू 100 कर दो. यही होता है ना परसेंटेज निकालने का. करेक्ट. बट आपको इतना सब आना चाहिए ना, तब जाके ये हो पाएगा. वो तो चैट जीपीटी है, अगर नहीं होता तो. सर हाँ बोलो. अगेन विल गो टू न्यू मेजर एंड वी विल पेस्ट दिस. ठीक है. अब ये देखो बिल्कुल परफेक्ट फॉर्मूला है ये. हमको इसके सर पैर कुछ नहीं पता होगा, लेकिन ऐसा आंसर जरूर आ जाएगा हमारा. ठीक है. तो अब ये फंक्शन हमने ये कौन सी टेबल में आ रहा है, डेट टेबल में जा रहा है ये. ठीक है. इसको मेरे को सेल्स सेल्स में करना है. सेल्स में यहाँ से शिफ्ट कर देंगे तो ये सेल्स में चला जाएगा. एंड नाउ आई विल पुट इट इन द दिस थिंग कार्ड. ठीक है. तो ये वाला कार्ड मैंने सेलेक्ट करा, इसमें से ये हटा देंगे हम प्रीवियस ईयर, और सेल्स में से हमारे पास ये है सेल्स परसेंटेज. 61% का नुकसान है. कैलकुलेटर पे चेक करके देख लो आप लोग. 11 - 30 इज 19 डिवाइड बाय 11, सॉरी 19 डिवाइड बाय 30. 63.33, वही उतना ही आ रहा है लगभग, है ना. 61.87, 63%. 30 - 11, 19 डिवाइड बाय 30, 11. है ना. So this is how your DAX functions are useful actually. ठीक है. तो आई थिंक इट इज इनफ फॉर द डे. आप लोग थोड़ा सा और प्रैक्टिस करो इन सब चीज़ों को, और हम कल का क्लास का अनाउंस, है ना. इफ पॉसिबल वी विल कीप, इफ नॉट पॉसिबल, मुश्किल लग रहा है, आई हैव टू गो फॉर अ मैरिज, अटेंड अ वेडिंग टुमारो, तो नहीं होगा. बट फिफ्थ को एंड सिक्स एंड फिफ्थ सिक्स डेफिनेटली देयर विल बी क्लासेस. 7 ऑल्सो विल बी अ क्लास. ठीक है. तो हम 3 दिन में, है ना, टाइम इंटेलिजेंस फंक्शंस में आपको कवर करा के एक डैशबोर्ड में हम उसको यूज करके देखेंगे. एंड मोस्ट प्रोबेबली ऑन दिस फ्राइडे आई एम गोइंग टू कंप्लीट दिस. ठीक है. और आई विल गिव यू सम प्रैक्टिकल असाइनमेंट बाय टुमारो मॉर्निंग. कल मैं आपको, अभी मैं बना के कल मैं ग्रुप में डाल दूंगा. कल का क्लास नहीं होगा, तो आप प्रैक्टिस करिए उसको, और फिर परसों आइए with your problems. So if you practice and come, then you will be able to ask questions and you will be able to do justice with this course, है ना. अदरवाइज तो जितना मैंने बताया आपने सीख लिया, अच्छी बात है. लेकिन अब जो थोड़ा सा 2-3 दिन का और बचा हुआ है, उसमें एडवांस लेवल है. और एडवांस लेवल
का बेनिफिट तब होगा जब आप थोड़ा सा होमवर्क करके आएंगे। तो आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं देना। जो हमारा 9 से 10 फिक्स है पावर बीआई के लिए, उसी को कल आप, मैं नहीं होऊंगा, आप लोग सब बैठ के पढ़ो। जो मैं होमवर्क दूं उसको कंप्लीट करो, चैट जीपीटी यूज करो, डेक्स फंक्शन निकालो और आंसर निकाल के करके बताना मुझे। सो इट विल बी ए सेल्फ लर्निंग। ठीक है।